A very good morning to all of you, and I'm thankful to the Divine who provided me such a wonderful opportunity where I can share some pilferage, some bites of knowledge with the assets of the nation. And congratulations India, congratulations Everest, and congratulations every citizen of this nation, because today is a day of pride, today is a day of honor. Because on this day, just 1 year before, India achieved a remarkable feat. India successfully landed the Chandrayaan-3 mission on the southern portion of the lunar surface. And this fits India among the 4 successful countries across the world and the first country to land the Vikram lander on the southern portion of the lunar. But today we will discuss that why science is so important to us and what kind of the society in which we live, whether the society is cultivating science or the society is trying to kill the science. Though I am not an orator and I don't know the web of words to lure the masses, that's why I come to the point. I will take pause while speaking, because whatever I am going to speak is not the part of any speech. I never prepare my speech. I only speak those things what I know. If I taking pause, it doesn't mean that I forget something. It means that I am thinking actually. Okay, let's start it. See, we need to understand one thing, that either we are living in a society with science or we are living in a society without science. So what is the difference between a society with science or a society without science? A society with science is a society that welcomes innovations, that welcomes changes, that welcomes explorations, that welcomes new ideas. But a society without science is a society which believes in obscurantism. एक ऐसा समाज जिसमें विज्ञान का दिया जलता है और एक ऐसा समाज जिसमें विज्ञान का दिया नहीं जलता। इन दोनों में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा समाज जिसमें विज्ञान का दिया जलता है, वो समाज नए विचारों का स्वागत करता है, वो समाज नए इनोवेशंस का स्वागत करता है, वो समाज नए एक्सप्लोरेशन का स्वागत करता है। मुझे लगता है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी विदाउट साइंस। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ विज्ञान का दिया नहीं जलता है, इसीलिए लोग नए परिवर्तन से डरते हैं। Nobody is talking, especially the students of science even and the faculties of the science. Nobody is talking about new ideas. Nobody is talking about new innovations. कोई भी यहाँ नए विचारों की बातें ही नहीं करता है, कोई साइंटिफिक आइडियाज की बात नहीं करता है, कोई इनोवेशंस की बात नहीं करता है। तो from where we can bring this innovations, from where we can inculcate this ideas in the society, कहाँ से हम ये चीजें समाज में विकसित कर सकते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। It can be inculcated from the nursery of the society and that is school. अगर हम इस तरह के आइडियाज समाज में बोना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होगी स्कूल से, क्योंकि स्कूल समाज की नर्सरी है। But what we actually doing in the school, that we really need to understand. We don't need science believers, we need science seekers. But unfortunately we have science believers and we are creating science believers. हमें वो लोग नहीं चाहिए जो विज्ञान में विश्वास रखें, हमें वो लोग चाहिए जो खोज में विश्वास रखें। जब आप विज्ञान में विश्वास रखते हो तो आप विज्ञान को मारते हो, क्योंकि विज्ञान खोज से जिंदा होता है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ इसलिए दिया क्योंकि न्यूटन को किसी ने ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया ही नहीं। ओम्स ने ओम्स का लॉ इसलिए दिया क्योंकि ओम्स को किसी ने ओम का लॉ पढ़ाया ही नहीं। They discover it, उन्होंने उसे खोजा। अगर उन्हें पढ़ा दिया जाता तो वो उसे बिलीव कर लेते, और अगर वो उसे बिलीव कर लेते तो वो कभी खोज नहीं पाते। तो पहली चीज जो सबसे जरूरी है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि वी हैव टू टेक ए ड्रास्टिक शिफ्ट, वी हैव टू टेक ए ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम साइंस बिलीवर्स टू साइंस सीकर्स। हमें विज्ञान में विश्वास नहीं रखना है, हमें खोज में विश्वास रखना है, तभी हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। And the second and the most important thing, we are creating a force of scientific memories, but we need to create a force of scientific minds. हम एक ऐसी सेना बना रहे हैं, हम एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं स्कूल्स में
एकेडमिक्स में, जहां पर लोगों की यादों में विज्ञान है। पीपल हैव साइंटिफिक मेमोरीज। मुझे हमेशा उस बच्चे को देख के सबसे ज्यादा दुख होता है जो रट के विज्ञान में 90 नंबर लाता है, क्योंकि जब वो बच्चा रट के विज्ञान में 90 नंबर लाता है तो उस बच्चे के पीछे सारे बच्चे दौड़ लगाते हैं और वो सब भी रट के 90 नंबर के पीछे दौड़ते हैं, और वो एक बच्चा जिसमें विज्ञान की संभावना पैदा हो जाती है वो भी शायद मर जाती है। तो आई थिंक दैट वी नीड साइंटिफिक माइंड्स, नॉट साइंटिफिक मेमोरीज। हमें ऐसे दिमाग की जरूरत है जिसमें विज्ञान की खोज विकसित हो सके, ना कि विज्ञान की यादें विकसित हो सके। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एंड एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम मोर और लेस, बट आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द प्रॉब्लम, आई एम हियर टू डिस्कस द सॉल्यूशन। Because if you don't know the solution, you are still the part of problem. सभी लोगों को समस्या पता है कि समस्या क्या है, पर मैं यहाँ पे समस्या पे चर्चा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे समस्या के हल पे चर्चा करने आया हूँ। क्योंकि यदि आप समस्या का हल नहीं जानते तो आप खुद भी समस्या का हिस्सा हो। Problems are just like energy, they never get destroyed. Wherever you are, at the top or at the bottom, the problems will always with you. But if you have the solutions, you can transform that energy, you can optimize that energy, you can utilize that energy. समस्या ऊर्जा की तरह होती है, एनर्जी की तरह। जैसे साइंस कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही निर्माण। वैसे ही समस्या कभी भी जीवन में नष्ट नहीं होती, वो हमेशा रहती है। पर अगर आप हल ढूंढ लेते हैं, इफ यू फाइंड द सॉल्यूशन, यू कैन कन्वर्ट दैट एनर्जी, आप उस ऊर्जा को बदल सकते हैं अगर आप हल निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हल क्या है? हल है इफ वी ब्रिंग स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस एट द लेवल ऑफ द यंग माइंड्स, at the level of the school platforms, college platforms, academic platforms, a small structural change can even make a big difference. अगर हम structural level पर change ला सके लोगों के दिमाग में, नई जनरेशन के दिमाग में, स्कूल्स के प्लेटफॉर्म पे, एकेडमिक्स के प्लेटफॉर्म पे, कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। We can really create a force of innovators. And let me demonstrate you, what would it be possible? मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि क्या वाकई एक छोटे से स्ट्रक्चर में चेंज लाने से क्या हम एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। पीस ऑफ पेपर, though this is a specific paper, it is a piece of sheet, and in science we believe that the force also depends on the medium. That's why I took a special medium to demonstrate this.